Good morning, children. Today we are going to study the second lesson of the English book class 10, the Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is already taken from his autobiography itself. Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an extract of Nelson Mandela's autobiography. नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ एक चैप्टर का भाग ये है. ही इज़ द फर्स्ट एवर ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. In this chapter, Mandela shares the horrible experience of the harsh autocratics carried out by the unsympathetic white rulers on innocent black natives of South Africa under the apartheid. He is also shared that overwhelming of the emotions of the time of the victory against it. इसमें नेल्सन मंडेला ये एक हिस्टोरिकल पार्ट है. नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है. ऑटोबायोग्राफी आपको मालूम है आत्मकथा से लिखा हुआ है. ये इसमें से साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक प्रेसिडेंट पहली बार उधर प्रॉमिस और प्लेड्ज लेने जा रहे तब उसका मेमोरी के बारे में उसके पहले का हिस्ट्री सब जुड़े हुए लिखा हुआ है. What was the history? You can he is already Nelson Mandela is also one of the greatest leader of the South Africa and who win the freedom there. At the same time, Mandela shares his horrible experience with the white peoples, white rulers, white साहिब लोग इन लोगों को बहुत परेशान करते हुए बहुत सालों से मीन्स बहुत सदियों से उनको शासन कर रहे थे. बहुत inhuman activities दिखा रहे थे. Unsympathetical rulers were there, white peoples. Then they are already followed the racial discrimination that is called apartheid. Apartheid means racial means वर्ग और ट्राइबल रूप से कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन अपार्थाइड में लगा दिया. उसके वजह से लोगों को बहुत इधर हमारे भारत में भी पहले छुआछूत ऐसे कुछ नियम कायम रहते थे. उसी प्रकार का वो एक अनसिम्पैथेटिक सिचुएशन और अनटोल्ड मिजरीज द नेल्सन मंडेला इज ऑलरेडी showing in front of us. Okay, so we can see that Nelson Mandela was a courageous person, determined leader of South African National Congress who struggled for almost 8 decades win freedom for the countrymen against the racial oppression of the discrimination. And he worked for all life and peace and humanity. He loved his peoples and the freedom got admiration all over the world. हमको ये पता चलता है कि नेल्सन मंडेला बहुत करेजियस डिटर्मिनेशन लीडर था. बहुत हिम्मत वाला और डिटर्मिनेंट वाला और डिसीजन लेने वाला है अफ्रीकन कांग्रेस में. उसमें 8 decades मीन्स नियर अबाउट 800 नॉट 18 decades. 18 decades means 18 years. 18 years he is already fought against the freedom slaveries, and then he become the countryman, and he is already giving the peace and the humanity, love and care for the all the black people there. Okay, इतना ही आपको याद करना है. ये ब्लैक पीपल के आप साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल के स्वतंत्रता के लिए एक बहुत करेजियस मैन जन्म हुआ है. उसने 80 साल तक ऐसे फाइट करा है. नियर अबाउट 30 साल तक वो जेल में था. इसके बारे में छोटा सा स्टोरी है. सी दैट the May 10th, 1994 was a historical day when Nelson Mandela was sworn in as the first ever black president of the Democratic South Africa.
installation ceremonies of the country's first democratic non-racial government, and the ceremony took place in the sandstone amphitheatre formed by the Union Building of the Pretoria. Nelson Mandela was accomplished by the daughter Senai, and he pledged in that president after that soaring the Mr. Dr. Clark as a second deputy president of Mr. Thabo Mbeki as the फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ओके, आप लोग को ये पता चलना है कि ये प्रेसिडेंट आसे प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में प्लेज ले रहे और ओथ ले रहे, प्रतिज्ञा दे रहे। उस डेट है 10 मई 1994 में हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट हुआ है। वो ब्लैक पीपल को भी प्रेसिडेंट के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का सिलेक्टेड हिम इलेक्टेड कर दिया है, उसके वजह से उसने प्लेज ले रहे। उसके साथ सेरेमनी के प्लेस कहाँ हुआ है? द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड ए यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग है उधर, जैसे हमारा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन के सामने ऐसे करने जैसा है, उसका सैंडस्टोन एम्फीथिएटर के सामने इसे प्रतिज्ञा करने लग गया था। द मंडाला वाज अकम्पनीड बाई हर डॉटर। आपको पता चलता है व्हेन ही वाज टेकिंग द ओथ और द प्लेज, उसके साथ 3 इम्पोर्टेंट पर्सन था। फर्स्ट हिज डॉटर इस नेम इज Senai, his first daughter, and pledged to the president after he pledged as a president after soaring of the Mr. Dr. Clark and the first deputy president, and his first deputy president बाद में ले लिया। उसके बाद डिप्यूटी प्रेसिडेंट ले लिया। ऐसे एक प्लेज उधर फर्स्ट ब्लैक government has already non-racial government has already taken the oath there. So Mandela's inaugural speech was very famous. In this speech, Mandela addressed the centuries old misrule of the white over the blacks and extraordinary human disasters. He promised to build a society in which entire humanity is proud, and expressed the gratitude and dignitaries who participated in the common victories of the justice, peace and the dignitaries. And he also promised that he would will be free. He worked for free of the peoples and shackles of the poverty, suffering and deprivation and determinations. He expressed his thanks to become a countryman, and then he black president of called glorious human achievements. हमको मालूम होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला इस सेंचुरी में बहुत सारे मिसरूल देखा हुआ है, वाइट पीपल का मिसरूल देखा हुआ। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिसरूल एंड इट इज़ ए ह्यूमन डिसास्टर्स ऑल्सो। ब्लैक पीपल को एक ह्यूमन डिसास्टर्स था, उसकी प्रकार इधर ब्लैक पीपल को परेशान कर रहे थे। they are also entire human would be proud about it. When Nelson Mandela taken the oath और इनाग्रल एड्रेस मीन्स इनाग्रेशन में स्पीच दे रहे थे, तब उसमें सभी ह्यूमन बीइंग्स को एक प्राउड का मोमेंट हो गया था। एंड ही एक्सप्रेस द ग्रैटिट्यूड एंड डिग्निटरीज हु पार्टिसिपेटेड द वुमन कॉमन विक्ट्रीज, जस्टिस, पीस एंड द डिग्निटी। हमारा अभिमान के लिए, जस्टिस के लिए, नीति के लिए, पीस के लिए जो व्यक्ति इधर पार्टिसिपेट कर रहे उसके लिए सभी को इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लग गया। उसके बाद we can see that he is also standing against the people who are fighting against the poverties and suffering, depressions and discrimination. उधर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन दिखाते थे, विविधता और वैजाति दिखाते थे, सब बहुत सफरिंग होते थे पॉवर्टी की वजह से। इसके मामले में बहुत परेशान होके इसने थैंक्स बोलते हुए ब्लैक प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ये
glorious human achievements has already got by him. उसका काम के अनुसार उसको बहुत ह्यूमन अचीवमेंट्स मिल गए, ग्लोरियस अचीवमेंट मिला है करके स्पीच करने लग गया था. मंडेलास mention an extraordinary human disasters. in this speech उसने दिया है एक extraordinary असाधारण रूप से एक ह्यूमन डिसास्टर्स लोग साइन कर रहे थे. एंड देन द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, racial discrimination policies of the apartheid was introduced by the white skinned peoples of the countries. हमको मालूम है white skinned people और साइप पीपल एक अपार्थाइड करके एक बड़ा नियम बना के रखा था, उसको अपार्थाइड बोलते हैं. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वाइट वाला एक साइड में, ब्लैक वाला दूसरे साइड में, ऐसे सामाजिक रीति से कोई जस्टिस नहीं दिखाए थे. इसके बारे में ये स्पीच करने लग गया था. एंड देन दैट the white peoples and dark skinned people of the country were not provided any freedom or civil right and equal native likes whites, and blacks peoples already suffered severely due to his policies. Due to this apartheid policies, peoples are suffered a lot. बहुत इन लोग सहन करने लग गया. कारण ये है कि उनको कोई फ्रीडम नहीं था. वो वाइट पीपल को फ्रीडम था, लेकिन ये ब्लैक पीपल की वही इधर का जन्म हुआ है, लेकिन अफ्रीका में उसको कोई फ्रीडम नहीं था. इन द एंड मंडेला स्पीक्स ऑफ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स. लास्ट में उसने बोला है इट इज़ ए ग्लोरियस अचीवमेंट्स, ऐसे बोलने लग गया था. ये victory is made by the abolishing the apartheid, becoming the first ever black president of the South Africa. South Africa का first president of the South African Nelson Mandela came and put an end, abolished means put an end, इसको ख़त्म कर दिया है और apartheid को ख़त्म कर दिया है. उधर he is unshackled black peoples from the poverties, oppressions, discriminations, slaveries and deprivations etc. इसमें से सबको मुक्ति कर दिया है, जो पॉवर्टी से, ऑपरेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से, जो क्या बोलते हैं गुलामी से, ये सब कुछ कर दिया है. और उसकी दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन रेशनल डेमोक्रेसी एंड नाउ हैज़ इक्वल राइट्स फॉर ऑल द सिटीजन. अभी उधर सभी सिटीजन को, सभी प्रजा लोगों को, सभी को एक अच्छा फ्रीडम, सभी को अच्छा राइट है. Then the military exhibition loyalties and new formed government. Then he has taken the oath or pledge लेने के टाइम पर an impressive display of the South African jets, helicopters, troops carries the even after the Mandelas took oath and the president. इसमें हमको मालूम है विविध देश से, कंट्री से लोग आए थे. इन लोग अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स एक्सेट्रा ऑलरेडी सीन देयर. एंड when the highest of the military generals saluted the Mandela and he remembered that they have to arrested in many times years ago. आपको मालूम होना चाहिए है एक व्यक्ति 30 साल में जेल में पड़ा रहते तो उसको उधर का कंट्री का जो नियम के अनुसार उनको अरेस्ट कर दिया. वो बड़े बड़े अफसर लोग उसको सल्यूट करने लग गया था. और इस मिलिट्री जनरल्स एंड दे आर ऑलरेडी, ही इज ऑलरेडी रिमेंबरिंग, वो याद करते थे इन लोग पहले उनको अरेस्ट करके रखा था. It was done by the military's loyalty towards the democratic government. New democratic government, the African National Congress is already win there, so the democratic government is already, due to the new democratic government के कारण military officers उसको, generals उसको salute करने लग गया. Two national anthems were sung or two national anthems were played, and white sung in the old one, Nkosi and Sikelel Africa, the black sung a new day steam and marked the end of the
सेरेमनी, यो ओथ सेरेमनी में, वो प्लेज सेरेमनी के लास्ट मोमेंट में दोनों अपना अपना, वाइट पीपल अपना गाना गाया और ब्लैक पीपल अपना देश नेशनल एंथम गाया है। नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम गाने का मतलब ये है कि ब्लैक पीपल ऑलरेडी द अदर साइड, अनदर white people in the other side sang an extraordinary ceremony, that is why in order to signify the equality of the both race, वाइट एंड ब्लैक रेस का इक्वालिटी दिखाने के लिए दोनों लोग अपना नेशनल एंथम गाया और रिप्रेजेंटेड द एंड ऑफ द नेशनल रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। सो इसका भी मतलब ये है कि नेशनल डिस्क्रिमिनेशन उधर था वो तो समाप्त हो गया है करके, अपार्थाइड ऑफ द साउथ अफ्रीका। Nelson Mandela's days, there were a white supremacy had formed to the racial discrimination policy termed as an apartheid। आपको मालूम है apartheid मतलब ये उनका नेल्सन मंडेला के उसके बारे में याद कर रहे थे। वाइट पीपल उसके ऊपर, ब्लैक पीपल के ऊपर एक बड़ा सुपरमसी, बड़ा एक अधिकार और सत्ता दिखाते थे, उसके बारे में वो याद कर रहे थे वो ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लेज। एंड नेल्सन मंडेला रिमेंबर द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ सैक्रिफाइसेस। नेल्सन मंडेला अभी इधर अफ्रीकन शासन में आने के पहले बहुत सारे लोग शासन करा था उधर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध बहुत काम कर रहा था, लेकिन उनका अभी याद कर रहे थे। ऑन द डे ऑफ द ओथ टेकिंग सेरेमनी, मंडेला रिकॉल्ड द सैक्रिफाइसेस ऑफ द लॉसेस ऑफ दैट अफ्रीकन पेट्रियट्स कंट्रीज हैड मेड इन ऑर्डर to abolish the discrimination among the natives. He thought himself to be a sum of all the peoples who earlier fought the country freedoms, and he agreed to that he could not thank them. Okay, he saw and he due to them they learned that courage was not a absence of fear but it is a triumph over it। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम अभी हमारा अगस्त 15 में, अभी अगस्त 15 आने वाला है, अगस्त 15 में हम खड़े होकर नेशनल एंथम गाते हैं। इधर इन लोग 2 गाना गाया है, नेशनल एंथम गाया है, उसी प्रकार हम नेशनल एंथम गाते समय हम याद रखेगा किसको, गांधी जी को, नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में याद करते हैं और बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को, ऐसे सुभाष चंद्र बोस को, बहुत सारे और हमारा बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे ऐसे पुराने और नया सभी को याद रखते हैं। कारण ये कि उनके वजह से हम आज इधर फ्रीडम से रह रहे और आजकल भी फ्रीडम एक क्या पूछे तो इतना फ्रीडम नहीं है, फिर भी ये हम याद रखते हैं। उसी प्रकार नेल्सन मंडेला ओथ लेने के टाइम पर, प्रतिज्ञा लेने के टाइम पर वो उसने पुराने टाइम पर बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका का जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे उनको याद करते हुए उसको सल्यूट लगा रहे और ड्यू टू दम एंड लर्न द करेज। इन लोगों को फ्रीडम नहीं मिले तो भी, इन लोग फ्रीडम निभाया नहीं है तो भी उसको एक बात मिला है उनसे, करेज मिला है। करेज मीन्स आपको मालूम है हिम्मत। करेज हैज़ टू एस्पेक्ट्स, फिजिकल करेज एंड मॉरल करेज, दोनों मिल गया है। एंड द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, ये बात नहीं है करेज का। करेज मीन्स ट्रायम्फ ओवर इट, इसके ऊपर हमको विजय पाने का एक मीनिंग है courage means Nelson Mandela, what he think about courage courage means it is not an absence of fear। कोई डरने के बिना किसी को गाली बकते, किसी को मारते, ऐसे ऐसे करते, लेकिन इट इज़ नॉट ए करेज, इट इज़ ओनली टाइप ऑफ फियर ओनली और टाइप ऑफ वल्गर एक्टिविटीज़ ओनली। इवन दो ही बिलीव्ड दैट ए ब्रेव मैन डज हैव नॉट ए फियरलेस and they have fearless and they should have to capability to conquering the fear। हमको fear conquering करने का एक अच्छा
ताकत कैपेबिलिटी होना चाहिए. देन मंडेला इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द ऑब्लिगेशन मीन्स हमको सभी से कुछ अपना अपना धर्म होता है. अपना अपना धर्म मीन्स रिलीजन नहीं है, अपना अपना जो दायित्व होता है उसके बारे में नेल्सन मंडेला फिर स्पीच कराए. मंडेला रिमार्क दैट ये मैन has a two obligation. First, personal obligation towards his families and friends and the children or parents, and the second is obligation to the community or country and believing the civil societies, and it has performed the both obligations of the countrymen, and black men like him do cannot perform any them due to the discrimination. Mandela was punished to isolated to his family, serving his nation. Thus he could never fulfill his obligation towards both. ये कंट्री की ओर से और फैमिली की ओर से उसको एक ओब्लिगेशन मीन्स उनका कर्तव्य वो उसको कर नहीं पाया. कारण है मंडेला इज टेलिंग दैट एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन obligation. There are two types of obligation towards his family, parents, wife, husband, children and everyone. At the same time another obligation is there, it's a community obligations, and that is towards the countries. दिस लाइक कंट्री की तरफ से अपना परिवार की ओर से ऐसे एक ऑब्लिगेशन दिखाना चाहिए. देन ओनली वी कैन फुलफिल आवर ambitions and freedoms and so and so. The Nelson Mandela joined the National African Congress. After looking at extreme oppressive situations of the country, Nelson Mandela is also joined in order to the fight of the freedoms and justice. नेल्सन मंडेला ये सब कुछ देखते देखते लास्ट में ही जॉइंड इन द इंडियन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस joined, and then the Mandela decided to go to fight in order to fight against the freedom of and justice. जस्ट फ्रीडम के लिए और जस्टिस के लिए, नीति के लिए उसने फाइट करने का कोशिश करा था. इसके ज्वाइन करने के बाद साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद बहुत फाइट करने लगा. ही वॉज ऑल्सो चेंज्ड द बोल्ड करेजियस एंड मैन फ्रॉम द टिम्ड यंग गेस. एंड बहुत सारे यंग पीपल्स को बहुत इंस्पिरेशन दे दिया है. स्ट्रगल मेड हिम टू ए क्रिमिनल फॉर्म द लॉ ऑफ द अबैडिंग सिटीज. लॉ ये अपार्थेड जैसे लॉ को डिसोबे करके उसका जो ए प्लान बाहर आने की वजह से उसको बहुत सारे टाइम पर जेल में डाल दिए थे. And Mandela does not think about the oppressive is free, and according to him oppressor is also bound by the fear and hatred, and locked him to the barriers and discriminations of the Malays. ओके हमको ये पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऑप्रेसिव पीपल को फ्री नहीं करना है. वाई नॉट ये सोचने लग गया था. सो द राइट द नेल्सन मंडेला इज ऑलरेडी टेलिंग दैट द 10th May ऑफ डाउन ब्राइट एंड द क्लियर. वो जो May 10 बहुत मॉर्निंग में अच्छे मॉर्निंग में क्लियर एंड ब्राइट मॉर्निंग में ही फास्ट फ्यू डेज I have been pleasantly besigned by the dignitaries of the world leaders. वर्ल्ड लीडर्स सभी इधर आ गए थे. उसके आने के बाद उसने बहुत लोगों को इकट्ठे करके उसके साथ इनाग्रेशन का जो बात था उसने करने लग गया था. और ऐसे हमको मालूम पड़ता है कि man should be an apostle. ये नेल्सन मंडेला was an apostle of the law, and he should have believes the fact of love and comes more naturally human beings than hatred. बहुत लोगों को हेट करने से, अपोज करके गुस्सा करने से भी ज़्यादा नेचुरल लव ह्यूमन बीइंग्स में लाना है करके उसका एक अच्छा सोच था.
ये लेसन का एक सारांश है कि हमको दूसरों को लव करना है, हेट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है और कोई भी फाइट नहीं करना है। लव एंड कंपैशन आर इनबॉर्न नेचुरल इन द पीपल एंड वाइल द हेट्रेड इज एक्वायरिंग बाय दम। ओके, नेचुरली बोले तो हमको है लव एंड कंपैशंस, बहुत കെയറും കരുണയും മഹാദയയും लव ഒക്കെ ചെയ്യുക, लव कुछ करना है तो ये बहुत अच्छा बात है। बाकी हेटन इज एक्वायरिंग बाय दम, वो दूसरे लोगों से हम हेटन वाला जो गुस्सा वाला सब दूसरों से सीखते हैं। ए पर्सन इज नॉट born in a hate others बेस्ड ऑन द कलर और रिलीजन। इस लेसन में सारांश ये है कि एक व्यक्ति जिंदा जन्म लेने के बाद हम कोई किसी को हेटन नहीं करना है, उसको कलर और रिलीजन, कास्ट, क्रीड और द जेंडर उसके आधार पर हमको उसको कोई भी प्रकार का हेट नहीं, अवॉइड नहीं करना है। हमारे फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है, never show any partiality on the basis of the caste, creed, color means or gender, लिंग मीन्स पुरुष जाति और स्त्री जाति, ऐसे ऐसे कोई भी फ़र्क नहीं दिखाना है। देश, भाषा, वेशभूषा, इसमें से कोई भी फ़र्क नहीं दिखाना है। देन बीइंग ए वाइट और ब्लैक डज नॉट मेक ए पर्सन ए सुपीरियर और बेटर, and the honesty, kindness, generosity and the devotion does so. The last areas the poet is already writer is already telling that Nelson Mandela is telling that white people or black people ये परवाह करने के बिना कोई भी सुपीरियर भी नहीं है, इन्फीरियर भी नहीं है, बेटर भी नहीं है, बैड भी नहीं है, बट दे हैव टू बिकम ए हॉनेस्ट, kindness, generosities and devotional people who develop the societies. And then we can say that this type of the things only we can get from the chapter. Okay, so you can read this chapter properly, and again this book already main point I have underlined in that book with red pen. It means बहुत सारे objective type और multiple choice question is coming from this chapter. So आपको इसका सारांश एक बार ध्यान रखना है। सारांश देखने के साथ साथ आपको छोटा सा बुक रीडिंग करके ये अंडरलाइन करा हुआ लेसन रीड करके, ये पार्ट रीड करके आपको छोटा सा क्वेश्चन बनाना का है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के आपका इसमें डाल देगा, आप लोग पढ़ना ही है। ओके, नेल्सन मंडेला चैप्टर इज़ ए वेरी सिंपल चैप्टर, बट चैप्टर summary is very large, and then it is a very good lesson also. From this lesson we can already getting some patience and perseverance guided by the discipline systems and desire etc. हमको इसमें से पता चलता है कि हमको कुछ पेशेंस मिलना है। नेल्सन मंडेला 30 साल में, हमारा इंडियन लीडर्स 30 साल में कोई जेल में रहा नहीं है, few months or few years, but 30 साल continuously he is already put in the jail. And in these situations we can understand that Nelson Mandela long walk to the freedom, both means बहुत लंबे टाइम पर 30 ईयर्स तक प्रेजेंट में था। एजुकेशन से अर्ली एजुकेशन से बाद उसने इसमें फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया है। आपको पता चला गया कि नेल्सन मंडेला become free when he having near about 80 year or something, 80 decades he fought against. Decades means one decades means 10 year, 8 decades means 18 year, you know, this way. Nelson Mandela is in this chapter आपको रिमेंबर करने का जो 4 कैरेक्टर्स है, फर्स्ट वन इज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ चैप्टर है। उसके साथ नेल्सन मंडेला इज़ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, फॉर द इक्वालिटीज़ of the black peoples
and he suffered a lot पेन फॉर द फ्रीडम, बहुत सफ़र कर दिया है। तो फिर उसका डॉटर है सीनाई ए डॉटर ऑफ द नेल्सन मंडेला हु अकम्प्लिश्ड विथ मंडेला इन द इनाग्रेशन डे एंड शी वाज मच क्लोज टू हिम। वो उनका साथ बहुत क्लोज में था। और उसके साथ अनदर वन है टबो तबो तबो ताबो ताबो मेमेकी Thabo Mbeki, a deputy president of the South Africa, was taken the oath in that day, and the Mr. de Klerk is the second deputy South African president. आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से एक बार ध्यान रखिए। इसमें से अपार्थाइड इम्पोर्टेंट है, ये प्लेड्ज लिया हुआ इम्पोर्टेंट एरिया से, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इसका है। ऐसे ऐसे चौड़ा सा टॉपिक के ऊपर ध्यान रखना है। इस टॉपिक के बेस्ड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आप लोग प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद अभी ये भी मंथली टेस्ट में आ जाएगा, यूनिट टेस्ट में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आई विल सेंड इन योर ग्रुप एज ए PDF फाइल और समथिंग। आप लोग अच्छे से बुक रीड करना है फर्स्ट चैप्टर से, और मैं रेड बुक सबको कीप करना है। रेड पेन से अंडरलाइन करा हुआ एरिया पूरा ध्यान से पढ़ के देखना है। उसके अनुसार आपको बहुत सारे आइडिया इस नेल्सन मंडेला के बारे में मिल जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।